everyone, myself Dr. Vijata, and today we are going to discuss gametogenesis. Student, gametogenesis is the process of formation of a male and female gametes. मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स के बनने की प्रोसेस को गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं, जिसमें oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस होता है. oogenesis मतलब इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ फीमेल गैमेट, ओवा और एग, दैट इज oogenesis, and spermatogenesis is the process of formation of sperm, that is a male gamete. So we are going to discuss each oogenesis and spermatogenesis one by one. So let's discuss the oogenesis first. Student, this process of oogenesis, that is the process of formation of a ova or egg in a female, starts in its intra-embryonic life itself. जब वो फीमेल का बर्थ भी नहीं होता, जब वो फीमेल एक एम्ब्रियो के स्टेज में होती है, तभी उसकी ओवरी में oogenesis की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है. ये oogenesis की प्रोसेस में there is a primordial germ cell which is also called as the PGC. This primordial germ cell, which is diploid cell, they are the mother cell. They undergo a process of multiplication. This is multiplication. The very first process is the multiplication, जिसमें ये primordial germ cell they multiply repeatedly, उनका repeated multiplication होगा, and after multiplication they forms a oogonia. That is again a diploid cell. Oogonia are the diploid cell which is formed after the multiplication of primordial germ cell. Now student, this oogonia they undergo a second process, that is a growth. Second stage is the growth stage. Oogonia, they grows. It means they undergo a process of vitellogenesis. Vitellogenesis is a process in which yolk formation takes place. Vitellogenesis process में yolk formation होता है. The yolk and the placenta, it provides nutrients to the growing embryo. ये yolk और जो placenta होता है, ये growing embryo को nutrition provide करता है. So students, oogonia it undergoes a second phase that is called as the growth phase, जिसमें vitellogenesis की process होती है, और उसके साथ there is a increase in the number of cell organelles. Cell organelles के number increase होते हैं. For example, mitochondria, then Golgi apparatus, then एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारे सेल ऑर्गेनल्स के नंबर इंक्रीज हो जाते हैं. तो oogonia में ग्रोथ होने के बाद दे विल कन्वर्ट इनटू अ प्राइमरी oocyte, एंड डियर स्टूडेंट, दिस प्राइमरी oocyte इज 200 टाइम्स लार्जर देन दैट ऑफ द oogonia. oogonia की कंपैरिजन में प्राइमरी oocyte जिसकी ग्रोथ हो चुकी है वो 200 टाइम्स उसके साइज में लार्जर होगा, बिकॉज इट हैज अ इंक्रीज अमाउंट ऑफ yolk एंड देयर इज अ इंक्रीज in the number of cell organelle, mitochondria, Golgi apparatus, endoplasmic reticulum, ये सारे सेल ऑर्गेनल्स भी काफी बढ़ जाते हैं, जिसके कारण प्राइमरी oocyte का जो है साइज भी काफी बढ़ जाता है. So this is all about primary oocyte. Now this primary oocyte, it undergoes a next step, that is maturation. नाउ स्टूडेंट, मैचुरेशन में बहुत सारी चीजें जो आपको याद रखनी है. मैचुरेशन में सबसे पहले होता है स्टूडेंट्स मियोसिस 1. मियोसिस 1, प्राइमरी oocyte इट विल अंडरगो अ मियोसिस 1. मैचुरेशन करते समय प्राइमरी oocyte सबसे पहले मियोसिस 1 करेगा. स्टूडेंट्स, हम सबने पढ़ा है मियोसिस 1 में सबसे पहले होता है प्रोफेज 1, देन मेटाफेज 1, एनाफेज and telophase, right? And this प्रोफेज 1 के भी बहुत सारे सब, यहाँ पे भी बहुत सारी प्रोसेस होती है, जैसे लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पचाइटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस, राइट? सो स्टूडेंट, जैसे ही प्राइमरी oocyte मियोसिस 1 बिगिन करता है, इट अंडरगोज अ प्रोफेज 1,
देन लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पचाइटिन एंड डिप्लोटीन। जैसे ही डिप्लोटीन ये प्रोसेस कंप्लीट करता है, दैट इज अ डिप्लोटीन प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस 1। जैसे ही डिप्लोटीन ऑफ प्रोसेस 1 सेल डिवीजन कंप्लीट करता है, इसका सेल डिवीजन वहीं पे अरेस्ट हो जाता है। यहां पे लिख देती हूं, एट डिप्लोटीन स्टेज ऑफ प्रोफेज 1 ऑफ meiosis 1 division is arrested। यहां पे जाके डिवीजन अरेस्ट हो जाता है, मतलब डिवीजन यहीं पे रुक जाता है। अब प्राइमरी oocyte जिसने डिप्लोटीन स्टेज ऑफ प्रोफेज 1 ऑफ meiosis 1 कंप्लीट कर चुका है, ऐसे प्राइमरी oocyte को स्टूडेंट डिक्टिएट oocyte के नाम से जाना जाता है। ओके, ये डिक्टिएट oocyte बन जाता है। मतलब यहां पर कहीं पर प्राइमरी oocyte मैच्योर होके meiosis 1 चालू करेगा और उसके बाद ये डिक्टिएट oocyte तक बन जाएगा और वहीं पे ये प्रोसेस अरेस्ट हो जाएगी। इसका मतलब ये होता है कि जब एक फीमेल बर्थ लेती है, एट द टाइम ऑफ हर बर्थ ओनली, एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑल्सो उसकी ओवरीज में लार्ज नंबर ऑफ डिक्टिएट oocyte प्रेजेंट रहते हैं, बिकॉज oogenesis की प्रोसेस इंट्रा एम्ब्रियोनिक लाइफ में ही शुरू हो चुकी थी। प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स oogonia में कन्वर्ट हो गए थे, oogonia प्राइमरी oocyte में कन्वर्ट हो गया था और प्राइमरी oocyte ने भी meiosis 1 शुरू करके डिक्टिएट oocyte तक बन चुका था और ओवरी में बर्थ के समय भी लार्ज नंबर ऑफ डिक्टिएट oocyte प्रेजेंट थे। Now the same female when she attains a puberty at around 11 to 13 years of age, वही फीमेल जब प्यूबर्टी अटेंड करती है 11 to 13 years of age में, अगेन ये जो डिक्टिएट oocyte में अरेस्टेड meiosis 1 थी, ये फिर से बिगिन हो जाती है। So I'll write that also. So, जब फीमेल प्यूबर्टी अटेंड करती है, तब ये डिक्टिएट oocyte जो है वो फिर से अपना meiosis 1 कंप्लीट करके सेकेंडरी oocyte बन जाता है। स्टूडेंट, दिस इज अ सेकेंडरी oocyte। नाउ दिस meiosis 1, अब जो meiosis 1 कंप्लीट हो चुका है स्टूडेंट्स, दिस इज एन अनइक्वल डिवीजन। यहाँ पे दो सेल्स बनते हैं, एक सेल लार्जर सेल जिसके अंदर ज्यादा अमाउंट में ooप्लाज्म प्रेजेंट होता है, विच इज द सेकेंडरी oocyte, एंड एक स्मॉलर सेल बनता है जिसके अंदर ooप्लाज्म कम अमाउंट में होता है, दैट इज द polar body. The secondary oocyte is haploid because the meiosis 1 is a reductional division. हम सबको पता है meiosis 1 is a reductional division. तो primary oocyte जो एक diploid था, उसने reduction division meiosis 1 complete करके एक haploid secondary oocyte में convert हो गया। Now जो smaller cell है student, that is a polar body. Polar body usually degenerate हो जाती है students और it is eaten up by the phagocytic cells. So this is all about the secondary oocyte. Now this secondary oocyte student, it again undergo a maturation, that is meiosis 2, which is an equational division. Now ये secondary oocyte meiosis 2 equational division करना चालू करेगा। ये प्रोफेज, मेटाफेज बिगिन करेगा, प्रोफेज 2 होगी, मेटाफेज 2 होगी और मेटाफेज 2 में आके फिर से इसका सेल डिवीजन अरेस्ट हो जाएगा सेकेंड टाइम। सेकेंडरी oocyte will again begin this meiosis 2, it will complete the प्रोफेज 2 and मेटाफेज 2 और मेटाफेज 2 कंप्लीट करने के बाद फिर से उसका सेल डिवीजन वहीं पे अरेस्ट हो जाएगा। इसका मतलब जो सेकेंडरी oocyte ग्राफियन फॉलिकल के अंदर होता है, दैट इज अरेस्टेड इन द मेटाफेज 2 ऑफ द meiosis 2. Then जैसे ही ये सेकेंडरी oocyte ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होता है, ये सेकेंडरी oocyte जाकर यूट्रस के एम्पुलरी स्थमिक जंक्शन पे बैठ जाता है और जब सेकेंडरी oocyte को स्पर्म टच करता है, जब सेकेंडरी oocyte को स्पर्म टच करता है, देन ये सेकेंडरी oocyte अपना meiosis 2 फिर से बिगिन कर लेता है एंड इट कन्वर्ट्स इनटू अ
ओवा एंड अ नेक्स्ट पोलर बॉडी। अगेन मियोसिस 2 जब कंप्लीट होती है तब अनइक्वल डिवीजन होता है, एक लार्जर सेल बनता है जिसके पास ज्यादा अमाउंट में साइटोप्लाज्म होता है, दैट इज अ एग और एन ओवा, और जो दूसरा सेल बनता है जिसके पास कम अमाउंट में साइटोप्लाज्म होता है, दैट इज अ सेकेंड पोलर बॉडी व्हिच आल्सो डीजेनरेट्स। तो स्टूडेंट अगर हम oogenesis की प्रोसेस देखें तो oogenesis की प्रोसेस में प्राइमोडियल जर्म सेल मल्टीप्लीकेशन से oogonia बना लेते हैं। oogonia आफ्टर ग्रोथ प्राइमरी oocyte, प्राइमरी oocyte इट अंडरगो अ प्रोसेस ऑफ मैच्योरेशन, meiosis 1 अरेस्ट हो जाती है और वो डिक्टेट oocyte में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब फीमेल की इंट्रा एम्ब्रियोनिक लाइफ में ही ये सारी प्रोसेस हो चुकी है। बेबी के बर्थ के समय ही दोनों ओवरीज में डिक्टेट oocyte प्रेजेंट है। नाउ आफ्टर प्यूबर्टी जो मियोसिस 1 अरेस्ट हुई थी वो फिर से स्टार्ट हो जाएगी और उसके बाद सेकेंडरी oocyte। नाउ सेकेंडरी oocyte बनते ही फिर से मेटाफेज 2 ऑफ मियोसिस 2 में ये प्रोसेस फिर से अरेस्ट हो जाएगी और अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो सेकेंडरी oocyte ओवा बनाएगा और नहीं होता है तो यही सेकेंडरी oocyte डीजनरेट होके मेंस्ट्रुअल डिस्चार्ज के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाएगा। नाउ oogenesis की प्रोसेस अभी हमने देखा कि इट इज नॉट अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, दो जगह ये प्रोसेस अरेस्ट हुई थी, एक मियोसिस 1 में भी अरेस्ट हुई थी और मियोसिस 2 में भी अरेस्ट हुई थी, इसीलिए स्टूडेंट oogenesis को एक डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस कहा जाता है। नाउ जब हम स्पर्मेटोजेनेसिस देखेंगे तब हम देखेंगे कि स्पर्म फॉर्मेशन की प्रोसेस में ऐसी कोई डिसकंटिन्यूटी नहीं होती है, स्पर्मेटोजेनेसिस एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है। So student, this is all about oogenesis. Thank you so much.